Good morning. Today I discuss some problems on hyperbolic function. Before discussing the problem, we must review some basic formulas on hyperbolic function. बेसिक फार्मूला जो कि हम लोगों ने किया है, पहला था जैसे साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कितना, इट इज इक्वल टू माइनस आई साइन x। इसी से रिलेटेड था, इस ओर लिखने का अच्छा रहेगा, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस साइन आई एक्स। सिमिलरली cos hyperbolic x is equal to cos ix and tan hyperbolic x is equal to minus I tan ix। ये तीन फार्मूला इसका था। एक इससे सबसे बेसिक फार्मूला था cos hyperbolic स्क्वायर माइनस sin hyperbolic स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। एक और था इसी में sin hyperbolic 2x is equal to 2 sin hyperbolic x into cos hyperbolic x, whereas cos hyperbolic 2x is equal to cos hyperbolic x plus sin hyperbolic square x, whereas it can be also written as 2 times of cos hyperbolic square x minus 1, or it is equal to 1 plus 2 sin hyperbolic square x, right? Whereas 1 plus cos hyperbolic 2x, this is equal to, इससे हम निकाल कर सकते हैं, this is equal to 2 times of cos hyperbolic x and cos hyperbolic 2x minus 1 is equal to 2 sin hyperbolic square x. These are some important formula, and on the basis of, by using this formula we can solve the problem. Problem number 1. If given that, suppose that cos hyperbolic x is equal to, suppose that sec theta, then prove that cos hyperbolic x is equal to sec theta, then prove that theta is equal to, that means find the value of theta. Probably it is equal to I log basically log 10 pi by 4 plus I into x by 2 to the base e, ये आना चाहिए। तो for this, given that cos hyperbolic x is equal to sec theta, that means cos hyperbolic x is equal to 1 upon cos theta। cos को 10 में बदल दिया क्योंकि ना रिजल्ट हमको 10 में लाना है, तो you know that cos 2 theta in terms of 10 कितना हो जाता है, it is equal to 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta, right? So reciprocal of this, that is, you can write 1 plus 10 square theta by 2 divided by 1 minus 10 square theta by 2. Now using componendo and dividendo by
कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, वी गेट cos, यहाँ इसमें समझ सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय 1, so we can write cos hyperbolic x minus 1 divided by cos hyperbolic x plus 1 is equal to, क्या कर रही है इसमें, इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाले फंक्शन को 1 को क्या किया माइनस, यहाँ 1 ये माइनस हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 देन प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 1 1 कैंसिल और इसमें tan tan कैंसिल, दैट मीन्स 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल, दैट इज ओनली tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो वी गेट हियर that is 2 sin hyperbolic square x by 2 divided by 2 cos hyperbolic square x by 2, और राइट साइड हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बच गया कितना, tan hyperbolic square x by 2 इज इक्वल टू इधर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर हट गया तो क्या बचेगा, that means you get tan hyperbolic x by 2 is equal to tan theta by 2, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, tan hyperbolic, इधर देख लेंगे, hyperbolic x इज इक्वल टू माइनस आई tan i x, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर ले सकते हैं, सो इट इज माइनस आई tan i x बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से इसको ब्रेक कर दें, साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, दैट इज माइनस आई tan i x बाई 2 इज इक्वल टू इसको एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2i आई थीटा बाई 2, ठीक है, ये मिल गया। इधर से i चलाएं तो कितना बचेगा, माइनस आई स्क्वायर दैट इज 1, so you can write tan i x by 2 is equal to, इधर कितना हो गया, e to the power i theta by 2 minus e to the power minus i theta by 2 and e to the power i theta by 2 e to the power minus i theta by 2, again using componendo and dividendo, again by componendo and dividendo, we get 1 plus 10 I x by 2 divided by 1 minus 10 I x by 2। इस बार ये नीचे में 1 है, 1 के साथ इसको ऐड किया पहले, मतलब इतना प्लस इतना इज इक्वल टू कितना, e to the power I theta by 2 e to the power minus I theta by 2 plus e to the power I theta by 2 minus e to the power minus I theta by 2 डिवाइडेड बाय यही चीज नेगेटिव में प्लस ठीक है, तो कितना बच गया है देखें, इस साइड में क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 कैन बी रिटन एज 10 पाई बाई 4
प्लस 10 प्लस आई 10 पाई बाय 4 प्लस 10 आई एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू 10 आई एक्स बाय 2 इज इक्वल टू राइट साइड में ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो कितना बच गया e टू द पावर I theta by 2 और e to the power minus I theta by 2. And this gives the formula 10a plus b. So write 10 of pi by 4 कितना हो गया? This implies that 4 plus I x by 2 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा e to the power I theta. Now taking log, we get I theta is equal to log 10 pi by 4 plus I x by 2 to the base e. So theta is equal to 1 by I, that is minus I log of 10 pi by 4 plus I x by 2 to the base e, and this gives the result. ये रिजल्ट लाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का सवाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दूसरे टाइप का हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ लेंगे, बाकी आप अपने से बनाएं। नंबर सेकंड में इफ sin theta plus I phi is equal to cos alpha plus I sin alpha, then prove that sin alpha is equal to plus minus कितना देगा cos theta is equal to square theta plus minus sin hyperbolic square phi। ये आना चाहिए। इस रिजल्ट को देख लेंगे कैसे होगा। अगेन गिवन दैट sin of theta plus I phi is equal to cos alpha plus I sin alpha। तो सबसे पहले इस फॉर्म को लेफ्ट साइड को a plus I b में ब्रेक कर लेंगे, तो कितना आएगा? इट गिव्स sin theta cos I phi plus cos theta sin I phi is equal to cos alpha plus I sin alpha। तो लेफ्ट साइड में इसको अब I अल्फा और I phi जो ट्रिग्नोमेट्री का सर्कुलर फंक्शन है इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग द फार्मूला। सो वी गेट sin थीटा into cos hyperbolic phi plus sin I phi। sin I phi is equal to I sin hyperbolic, so write I cos theta sin hyperbolic phi is equal to cos alpha plus I sin alpha। तो फर्स्ट में अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देन वी गेट sin theta cos hyperbolic phi is equal to cos alpha, whereas cos theta sin hyperbolic phi is equal to sin alpha। तो अब देखते हैं ये क्या है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा फाई एंड अल्फा, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इस दोनों में अल्फा एंड थीटा। तो फाई कैन बी एलिमिनेटेड। सिमिलरली अगर इसका इसके साथ लाएंगे तब क्या है ये रिलेशन अल्फा और फाई में, इससे थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो सवाल अब बिल्कुल आसान हो गया कि हाउ टू एलिमिनेट फर्स्ट टू रिजल्ट के लिए हाउ टू एलिमिनेट फाई, और इस दोनों के साथ में हाउ टू एलिमिनेट थीटा, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा।
ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, if we have eliminate phi, that means find cos phi and sin hyperbolic phi. So from 1 and 2, cos hyperbolic phi is equal to cos alpha divided by sin theta, and sin hyperbolic phi is sin alpha upon cos theta. And you know that cos hyperbolic square phi minus sin hyperbolic square phi is equal to 1 हो जाएगा, and since cos hyperbolic square phi minus sin hyperbolic square phi is equal to 1, so we get cos square alpha divided by sin square theta, and sin square alpha divided by cos square theta is 1. अब देखते हैं क्या ये रिलेशन में phi खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट को भी रहने देते हैं। We have find sin alpha is equal to plus minus this is equal to plus minus sin hyperbolic square phi। अब क्या करेंगे इसमें? That means you have cos square alpha, cos square theta, sin square alpha, sin square theta is 1। ये रिलेशन है अल्फा के साथ साइन, जबकि थीटा के साथ कॉस। तो अल्फा जहां है वहां साइन रख लेंगे, सो वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा के साथ कॉस, इसलिए इसको रहने दीजिए कॉस स्क्वायर, फिर अल्फा में साइन, इसको रहने देंगे, और यहाँ चेंज करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो रिलेशन क्या मिला इसको देख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस के साथ, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन के साथ अल्फा, कॉस के साथ थीटा, कॉस के साथ थीटा प्लस, और ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से हो गया इतना, इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आना चाहिए था, cos स्क्वायर साइन साइन, ओ सॉरी राइट साइड में देखिए यहां छूट गया ना, इस दोनों का एग्जैक्ट टर्म हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। नाउ चेंज द रिलेशन अल्फा के साथ साइन, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर से आइए इज इक्वल टू थीटा में cos, that means write 1 minus cos square theta into cos square theta। यही रह गया, तो कितना आ जाता है इसको देख लेंगे। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा। ये और ये फिर से कैंसिल, दैट मींस यू गेट हियर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos टू द पावर 4 थीटा, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये एक रिजल्ट मिल गया। नंबर 3, तो इससे घबराना नहीं है, इसमें सवाल बहुत आसानी से बनता है, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखते हैं रिजल्ट में क्या है। नेक्स्ट रिजल्ट में इसके और इसके बीच रिलेशन लाना है। हमको क्या था तो मिटा दिए हैं, तो उसके आधार पर से थीटा को एलिमिनेट करेंगे, एंड यू नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1।
उसके आधार पर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो दोनों को करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इसके बीच उसी तरह से रिजल्ट मिलेगा। थर्ड नंबर में, नंबर थर्ड के लिए चलेंगे, थर्ड प्रॉब्लम जो कि और भी आसान होगा। इफ cos इनवर्स u प्लस आई भी इज इक्वल टू, ये इनवर्स का हो गया, इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, where u, b, alpha and beta, there are four quantities, are or real, ये दिया हुआ, then prove that, इसका रूट्स निकालने का कोशिश करेंगे, prove that cos square alpha and cos hyperbolic square beta are the roots of the equation, and the equation is x square minus 1 plus u square plus b square into x and plus u square is equal to 0, यही आना चाहिए। देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। Here given that cos inverse u plus ib is equal to alpha plus I beta, and therefore u plus ib is equal to cos of अल्फा प्लस आई बीटा, और इसको ब्रेक कर देंगे, कितना मिलेगा, and it gives cos अल्फा cos आई बीटा माइनस sin अल्फा sin आई बीटा, और इसको चेंज कर देंगे, दैट इज u प्लस आई भी इज इक्वल टू cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा, and this is equal to again plus minus I sin alpha sin hyperbolic beta. Now equating real and imaginary parts, we get u is equal to cos alpha cos hyperbolic beta, right, number 1, and b is equal to minus sin alpha sin hyperbolic बीटा, ये चीज निकल गया। अब देखिए, अगर इक्वेशन का रूट्स ये दोनों है तो दोनों का प्रोडक्ट, यहां से प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज cos स्क्वायर अल्फा इनटू sin हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर, एक पार्ट इसी से मिल जाएगा, और हमको अब जरूरत है कि दोनों का सम कितना होगा रूट्स का। नाउ 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो इसको cos में ले आएंगे, दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और इसको ब्रेक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, और तब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर बच रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, एंड दिस इज द सम ऑफ द रूट्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस कितना होता है, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों मालूम है हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट एक और सवाल है, लास्ट प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर आप अपने से इसको ट्राई करेंगे फिर बाकी सवाल को। गिवन दैट इफ नंबर 4 में log ऑफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा, नो, theta plus I phi is equal to alpha plus I beta, then prove that cos of 2 theta is equal to, no, 2 cos 2 theta, prove that 2 cos 2 theta is equal to e to the power 2 phi plus e to the power minus 2 phi plus 4 into e to the power 2 अल्फा, और से भी ये आना चाहिए, देख लेते हैं, प्लस से माइनस आएगा, देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन में। गिवन दैट log sin theta plus I phi is equal to alpha plus I beta, that means sin theta plus I phi is equal to e to the power alpha plus I beta, ये तो मिलेगा, इसको ब्रेक कर देंगे, क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट sin theta cos I phi plus cos theta sin I phi is equal to इधर वाला पार्ट e to the power alpha e to the power I beta, ठीक है। Then it is equal to sin theta cos hyperbolic phi plus I cos theta sin hyperbolic phi is equal to this. Now replacing I by minus I, that means taking conjugate, we get, this is right number 1, and replacing I by minus I, तब क्या मिलेगा, that is sin theta cos hyperbolic phi minus I cos theta, है ना, and sin hyperbolic phi is equal to this, ये नंबर सेकेंड हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देयरफॉर मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे 1 एंड 2, तो क्या मिल जाएगा, दैट इज कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन, सो यू गेट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू e टू द पावर 2 अल्फा, ठीक है, e टू द पावर 2 अल्फा हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नो इट इज कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, cos hyperbolic square and this is sin hyperbolic square, so write 2 cos hyperbolic square phi plus 2 cos square theta 2 sin hyperbolic square phi is equal to 4 e to the power 2 alpha. Now change this, we get 1 minus cos 2 theta और 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा, कितना हो गया, दैट इज 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस
ये फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये यहां से निकलेंगे, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइ माइनस 1 इज इक्वल टू 4 e टू द पावर s। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट दिस, देखिए नेगेटिव और यहां से पॉजिटिव कैंसिल और 1 1 कैंसिल, सो यू गेट माइनस ऑफ cos 2 theta and plus of cos hyperbolic 2 phi is equal to 4 e to the power 2 alpha. That is 2 cos, 2 times of this and 2 times of this. That is 2 times of cos 2 theta is equal to 2 cos hyperbolic 2 phi. So write e to the power 2 phi plus e to the power minus 2 phi, और ये इधर चला है 4 e to the power 2 alpha, and this is the result। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान और इससे कम समय में निकल जाएगा। अल्टरनेटिवली, as you know that 2 alpha is equal to alpha plus I beta plus alpha minus I beta। क्या दिया हुआ इसमें? as given part is log sin theta plus I phi is equal to alpha plus I beta, then alpha plus I beta means log of sin theta plus I phi plus log sin theta minus I phi, log n plus log n is equal to log this into log of this, log mn, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, दिस फार्मूला अब ये कितना दे देगा, इट इज इक्वल टू e टू द पावर, यहां से निकाल लेंगे, e टू द पावर 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाइ साइन थीटा माइनस आई फाइ, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट दिस, एंड 2 साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस डिफरेंस में हो गया दिस माइनस दिस, दैट मीन्स 2 आई फाइ, देन माइनस cos sum of the angles, that is 2 theta, and therefore cos of 2 theta is equal to cos, and this is equal to cos hyperbolic 2 phi minus 2 times of e to the power 2 alpha, multiplying by 2, that means 2 cos 2 theta is equal to 2 cos hyperbolic 2 phi minus 4 e to the power 2 alpha, और अब इसको ब्रेक कर देंगे एंड यू गेट द रिजल्ट e to the power 2 phi plus e to the power minus 2 phi minus 4 e to the power 2 alpha। इस तरह से सवाल इसका बनता है और बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में इतना ही चीज देखना है, इसके अलावे नेक्स्ट चैप्टर में समेशन ऑफ सीरीज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।